एकदम बात नहीं चाहिए, ठीक है, आपस में. Okay, so let me ask all of you one thing. What is work? One by one. What do you think work is? Something we do for living. Like Arnab screams on screen. That's a work, right? Yeah. Of course, that's a very useful work. What do you think, ma'am, work is? वर्क क्या है? सुना होगा, बहुत ही सिंपल टर्म है, ऐसे कोई एलियन टर्मिनोलॉजी तो है नहीं. वर्क क्या है? वर्क आपके हिसाब से क्या है? पूछता है भारत, क्या है वर्क? जो मन में है बोलो. Is this troubling you, the light? I know it's troubling me, but हाँ बोलो. What is work? Which we do in our day-to-day life. Okay, okay, good, very nice. Good girl answer. बताओ sir, caution. Mental or physical. Wait, 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 wait. हाँ भाई बोल. Correct? You agree with them? Any action. Okay, do an action. Do an action and show me. Like this. This is an action, na? Gestures, hand gestures. Okay. Okay, okay, okay. So we have been getting different answers about work done. ठीक है? अब you should understand that the topic which we are studying is physics. And physics में हमने जो basic physics की शुरुआत की थी, that is in this chapter, in this class 9th, that is from motion. ठीक है? फिर उसके बाद हमने फोर्स को पढ़ा, अब हम उसके बाद ग्रेविटेशन, अब हम उसमें प्रेशर को पढ़ा हमने, अब हम वर्क के ऊपर बात कर रहे हैं. सो द वर्क विच वी आर कंसर्न्ड विथ इन फिजिक्स इज फिजिकल वर्क. व्हाट इज इट? फिजिकल वर्क. सो Arnab speaking or screaming on screen is not physical work. It is mental work. He might be doing very useful work in terms of mental work, but in physics he is doing zero work. Zero. He is a zero in physics. Yeah, that's true. Why is he doing zero work? Or maybe you might have come across a situation where you are tired, and if somebody asked you that what you have done, why are you tired? मैंने बहुत होमवर्क किया. मैंने बहुत होमवर्क किया. एक जगह पे बैठ के उठे भी नहीं और बहुत होमवर्क किया और इसलिए मैं टायर्ड हूं. तो मेंटली तुम टायर्ड हो सकते हो, ये बात मैं भी मानता हूं, बट फिजिकली यू हैव नॉट डन एनी वर्क. तो हमें वो मेंटल वर्क से यहां पे कोई लेना देना नहीं है. हैंड्स आर वर्किंग, बट स्टिल if I give you the details about what is physical work, you will still feel that there is no work done. I'll give you the details. So we are not, in short, we are not concerned with the mental aspect of work. Reading, writing, sitting at a place, thinking, screaming, speaking, whatever it is, that is zero work in terms of physics. In physics, work is said to be done only, remember, work is said to be done only when a force exerted on a body produces displacement in that body in its own direction. मतलब हम किसी बॉडी पे अगर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो फोर्स की वजह से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, मूव होगा वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में, तभी हम बोलते हैं
that force has done some work, or we who has applied the force has done some work. That is the work in physics or physical work. So writing, there is no displacement. Yeah, displacement of your hand, that to a very little bit, but in physics that cannot be calculated because it's very complex, na? What has been displaced? Your hand has been displaced. Okay, so maybe your hand's weight and the force applied by your muscles on your hand to move it in that notebook to and fro. Yeah, a little bit of physical work you've done, but not major work in writing, speaking, reading is mental work. The real work in physics is physical work, when you push a body and that body gets displaced in the direction of the force applied. If the body gets displaced in the direction of force applied, that means you are doing some work. Okay? So I don't know, it's not loading, but I have enough information to give you now. So I want all your notebooks and pens outside so that you can take notes. कैन सी वो वन नोट खुला है ना उधर? हाँ, इधर आया नहीं अभी तक, पता नहीं ऊपर वो घूम रहा है क्या गोल गोल? हाँ ऊपर देख वो, हाँ एक बार उसको शट डाउन करके ना, हो गया? ओके, यहाँ पे आ गया आ गया आ गया। ग्रेट 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 ग्रेट, आ गया। ठीक है, अब जो मैं हाईलाइट करूंगा या जो मैं तुम्हें लिखने के लिए बोलूंगा वो तुम लिखोगे, नोट करोगे। कैसे? पॉइंट वाइज, पूरा डिटेल ऐसे नहीं लिखना अपने को। अपने को सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, फॉर्मूले लिखने हैं, यूनिट्स लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, इन फिजिक्स work is said to be done. In physics, work is said to be done if a force is applied on a body. In physics, work is said to be done if a force is applied on a body and the force displaces the body. अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है और वो फोर्स उस बॉडी को जब डिस्प्लेस करता है, देन वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, ये एक क्लैरिटी रखना दिमाग में। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के वो लोग पूछ सकते हैं जिसमें कुछ एग्जाम्पल देंगे और तुम्हें पूछेंगे वर्क हो रहा है कि नहीं। इसके ऊपर और हम डिटेल में जाएंगे। द अदर क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क्ड to find out whether work in terms of physics is being done or not, and we got the answer. अगर force है, displacement है, तो work है। Second question which will be asked, which I will discuss on, is who is doing the work? Who is doing the work? ठीक है, so वो थोड़ा डिटेल में जाने के बाद ही समझ में आएगा, and I will give you examples. और एक पॉइंट लिखो जो बहुत यूनिक है, एंड इट इज गिविंग अनदर पर्सपेक्टिव अबाउट वर्क। वर्क ट्रांसफर्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स। वर्क ट्रांसफर्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स। वर्क ट्रांसफर्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अब ये कैसे होता है? इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तुम्हें एग्जाम्पल नहीं लिखना है, एग्जाम्पल को समझना है, याद रखना है, और तुम ऐसे और एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। यहां पे जो एग्जाम्पल दिया है, दैट इज व्हेन अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स वेट। वेट लिफ्टर जब वेट उठाता है, ही अप्लाइज फोर्स एंड डिस्प्लेसेस द वेट। वो वेट को ग्राउंड लेवल से थोड़े हाइट पे लेके आता है। फोर्स डिस्प्लेस हुआ, सॉरी वेट डिस्प्लेस हुआ और फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स एक्सर्ट हुआ। ठीक है, देन वी से दैट वर्क हैज बीन डन बाय द वेट लिफ्टर। छोटा सा आंसर मिला है, हु इज डूइंग द वर्क? वेट लिफ्टर। व्हाई? बिकॉज ही इज अप्लाइंग द फोर्स एंड द weight is being displaced or shifted in the direction in which weightlifter has applied the force.
जिस डायरेक्शन में वेट लिफ्टर ने फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में वेट डिस्प्लेस हो गया, इसलिए कौन वर्क डन कर रहा है? वेट लिफ्टर। ठीक है, दिस वर्क व्हाट इट डज, इट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेट। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? डू यू नो, हैव एनी आइडिया? किसी को आइडिया है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ओके, सो Potential to do the work. let me give you the correct answer. Potential energy is the energy stored in the body. Energy stored in the body due to its position. Due to its position. तो क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड से जितना ऊपर पोजीशन पे रखूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। कैसे पता चलेगा? मेरे को एक ऑब्जेक्ट दो जिसको मैं गिरा सकता हूं, इरेजर चलेगा। ठीक है, अब ये इरेजर है मेरे हाथ में। जो लोग सुन रहे हैं वो इमेजिन करो, मेरे हाथ में एक इरेजर है और मैंने उसको ग्राउंड से उठा के मेरे हाथ में रखा है। माई हैंड इज अबाउ ग्राउंड एंड आई से दैट some energy stored in this eraser. So you might ask that this innocent looking eraser doesn't look like looking like dead. It's looking like a dead animal. ऐसा इसमें तो कोई एनर्जी दिख नहीं रही। तो ये मैं बोलूंगा कि इसके अंदर एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी है। तो तुम्हें नहीं दिख रही है लेकिन दिखेगी, अभी दिखेगी। ये देखो, ये मैंने उसको सिर्फ जाने दिया, ड्रॉप कर दिया, क्या हुआ? वो जो एनर्जी थी बाहर आ गई। कैसे बाहर आ गई? दैट एनर्जी हेल्प्ड दिस इरेजर टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने उसको फेंका तो नहीं है, मैंने सिर्फ उसको जाने दिया है, छोड़ दिया, मैंने मेरा हाथ हटा लिया है सर। सो क्या हुआ कि वो बॉडी अब नीचे गिर गया। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डिस्प्लेस अ बॉडी, इन सर्टन केसेस यू स्टोर एनर्जी इनटू इट। मतलब जब मैं वर्क डन करूंगा इस इरेजर पे इसको उठाने के लिए, तो मैं इसमें क्या करूंगा? एनर्जी स्टोर करूंगा। तो वर्क क्या करता है? वर्क स्टोर्स एनर्जी इनटू बॉडी। By applying force on any body, you do work on it, and you do work means you store energy into it, and that energy in all the cases is not visible. In some cases it is internal energy which is known as potential energy. So इसमें मैंने कौन सी एनर्जी स्टोर की थी जब मैंने इरेजर को ऊपर उठाया था? पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने उसको छोड़ दिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। नाउ यू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? You know what is kinetic energy? Kinetic energy is the energy stored in a body which is moving. Potential energy is the energy stored in the body which is at rest. So यही होता है वर्क डन में, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो आदमी वर्क डन करता है वो एनर्जी ट्रांसफर करता है दूसरी बॉडी में, और वो एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, सो एक आइडिया आ गया वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। यू आर डूइंग हंड्रेड्स ऑफ वर्क इन अ डे। चीजें उठाना, चीजें ऊपर रखना, चीजें नीचे रखना, ये सब वर्क, चीजें पुश करना, साइकिल चलाना, वॉक करना, ये सब वर्क डन है। हाँ, बैठ के पढ़ाई करना वर्क डन नहीं है, होमवर्क करना, रीडिंग करना, स्पीकिंग, ये सब वर्क डन नहीं है। हाँ, बट बाकी की सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है इट रिक्वायर्स वर्क। तो जैसे मैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू प्रिथा, वॉकिंग, सिंपल एक्टिविटी ऑफ वॉकिंग, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन? Okay, then if it is example of work done, then let me ask you, who is doing the work? If you are walking, who is doing the work? Yeah, your body. Basically, your body is doing the work. Which part of your body is doing the work when you are walking? Your legs, your feet. ठीक है, उसमें भी which part is working? Your muscles. Your muscles are exerting force. They are burning some energy, they are exerting force on the whole body and they are moving the body ahead. अपर बॉडी का क्या काम है वॉकिंग में? कुछ नहीं, अपर बॉडी कोई वर्क डन नहीं करता। लोअर बॉडी एंड स्पेसिफिकली लेग्स वर्क करते हैं, लेग्स में भी मसल्स वर्क करते हैं। सो वॉकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। हु इज डूइंग द वर्क? द लेग्स आर डूइंग द वर्क। Who is getting displaced? The whole body is getting displaced. Who is exerting the force? The legs, and the muscles of the legs are exerting the force.
ठीक है, सिंपल एक्टिविटी बताया मैंने, वो भी वर्क डन का ही पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, ये होना जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिक्स पे। जहां फिजिक्स वहां मैथमेटिक्स, ये 9th क्लास का रूल है। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हर चैप्टर में हम लोग को ये टॉर्चर सहना पड़ता है कि फिजिक्स के साथ थियरी इतनी ब्यूटीफुल सिंपल थियरी है, बट साथ में मैथ्स भी आता है। बट मैथ्स, लेट मी टेल यू, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. Physics speaks in mathematical language. If you want to understand or prove some physical phenomena, you have to take help from math. Without math, you cannot explain why is it happening, or you cannot prove whether it is correct or not. So let me give you one formula of work. Before that, you need to write this statement: work done by a force on a body. Please note it down. You can simply copy it down from the screen. Work done by a force on a body is the product of force and displacement of the body. Work done by a force on a body is the product of force and displacement of the body. That is, work done is equal to, please लिख लो इसके नीचे, work done is equal to force times displacement. W is equal to F times S. ये वर्क डन का फॉर्मूला है। मतलब मैथमेटिकली वर्क डन एग्जिस्ट करता है। मैथमेटिकली अगर तुम्हें पूछा जाए कि कितना वर्क डन किया, तो तुम बता सकते हो नंबर में। मतलब कंपेयर भी हो सकता है, किसने ज्यादा वर्क किया किसने कम किया, क्योंकि मैथमेटिकल है, सब कुछ सामने सामने। मेंटल वर्क तो है नहीं, दो बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, किसने ज्यादा पढ़ाई किया। नो बडी कैन टेल, ब्लडी नो बडी कैन टेल। ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जो बता दे कि इसने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है, ज्यादा किया है कम किया है, क्योंकि दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स ओपन बुक है। फिजिक्स में वर्क किया कि नहीं मेजरेबल क्वांटिटी है। फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आंसर निकालो, यू विल बी एबल टू कंपेयर एंड मेजर। बता दो, वो सब होता है। Everything is possible, everything is measurable. Now we have instruments and technology and research available to measure everything. नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल इंसान फिजिक्स पढ़ता भी नहीं है। नॉर्मल इंसान नॉर्मल चीजें करता है। फिजिक्स पढ़ने वाले मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्योंकि वो हर चीज में क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ और इसको कैसे मैं इजी कर दूं काम को मेरे। इसलिए तो नॉर्मल इंसान में से जो थोड़ा सा अलग था, उसने पुली बनाया। पुली पता है? पुली इज अ स्मॉल व्हील, इसके अंदर से एक रोप जाता है, एक रोप के साथ बकेट को हम लोग टाई करके वेल में डालते हैं और दूसरा हाथ से हम खींचते हैं। पुली क्या है? सिंपल मशीन है। फिजिक्स, जिसको फिजिक्स का थोड़ा भी आइडिया था उसने अपना काम इजी कर दिया। बाकी सब लोग ऐसे बकेट को खींचते थे हाथ से, तकलीफ होती थी, वो ऐसे नीचे खींचता था और बकेट ऊपर आता था। जस्ट इमेजिन, फोर्स कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और बकेट ऊपर आ रहा है, बाकी लोग फोर्स ऊपर लगा रहे थे, जो डिफिकल्ट होता है बहुत। सो जो सोचता है ना थोड़ा, वो फिजिक्स में अप्लाई करता है, उसके लिए काम इजी हो जाता है। measurement is not physics. Measurement is only a small tiny aspect of physics. Mathematics and measurement is tiny aspect. Application is the major aspect. But we use measurement, we use formulae to make it simple, to make it available for everyone. मुझे पता है मैंने कैसे लॉजिक अप्लाई किया। अगर मुझे तुमको सिखाना है तो मुझे फॉर्मूला देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स बताना पड़ेगा, फिर तुम उसको अप्लाई करना सीखोगे। So when you learn physics, mathematics comes along with it. But when you apply it, you don't need it. You need little logic. अच्छा, और एक चीज लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। दैट इज, वर्क हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मेरे को बताओ कोई वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल, क्योंकि स्केलर वेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
Very good. Velocity is a vector quantity. Any other vector quantity? Acceleration. Acceleration. Displacement. Very nice. Anything else? Displacement. Displacement is a vector Displacement. quantity. याद आया? वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? ओनली मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में सिर्फ तुम पूछ सकते हो हाउ मच, बट वेक्टर आया तो तुम पूछोगे हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन. ठीक है, तो वर्क डन होता है, कोई सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है, तो हम क्या पूछते हैं? हाउ मच वर्क इज डन. क्या हम ये पूछते हैं कि in which direction the work is done? That's an invalid question. Illogical. That doesn't make sense. वर्क कोई डायरेक्शन में नहीं होता है, वर्क होता है. कितना होता है? हाँ, वो मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, इसलिए वो स्केलर है. बट एक चीज देखो, वर्क स्केलर है लेकिन वो बना किससे है? मतलब वो किसका प्रोडक्ट है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. दोनों वेक्टर है. मजे की बात है. और तुम इसको 11th में पढ़ोगे, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट. And what is dot product? You're going to learn in class 11th if you take science. Dot product of two vectors. Force is a vector, displacement is a vector, but work is scalar. It's a very unique thing. You will require it. So यहाँ पे एक फिगर दिखाया है जिसमें एक फोर्स है एक बॉडी के ऊपर. I know physics can be boring, but that's rude to yawn in front of your professor sitting on the first bench and teaching so passionately. I will ask once you to teach certain topic, anything which you like, you can teach me, and I promise you I'll be a good student. मैं वो सीख लूंगा. तुम्हें क्या आता है? स्किल्स बताओ. नहीं, स्किल्स, स्किल्स वो सब छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाई की बात कौन कर रहा है? स्किल्स, हॉबी, स्किल्स कुछ है क्या? डांस? हाँ, सॉरी, रीडिंग? नहीं, रीडिंग आई नो रीडिंग. कुछ और स्किल्स, स्किल्स बताओ. You know how to work out? अच्छा, which is your favorite workout? All right. So which exercise? Leg raises or crunches or what kind of? Are you have a certification? Certification. अच्छा, you're written now. Tell me which you know and that's very unique. Skipping, you know skipping? You teach me skipping. I'll be a very good student. I'll not yawn. And I will learn. End of the day, you will say, yeah, ये बच्चे ने करके दिखाया. ठीक है? मत करो ऐसा नेक्स्ट टाइम. इंटरेस्ट लो. मैंने नहीं बनाई बुक, सीबीएसई ने बनाई है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें. फिजिक्स मैंने बनाया ही नहीं है, न्यूटन था वो जिसने शुरुआत की इस सब की. मैं नहीं हूं इसमें. मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूं, देख लो, तुम जज करो. है ना बेटा? सही है ना? हाँ. नहीं, मैं क्लासरूम में ऐसे ही पकड़ता हूँ बच्चों, क्योंकि हम साथ में पढ़ रहे हैं ना. मैं भी स्टूडेंट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे सब आता है. ठीक है, लेकिन प्लीज, यस, थैंक यू. सो ये बॉडी है, बॉडी ए, नहीं, बॉडी एट ए. ये ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज द पोजीशन. इस पे क्या एक्सर्ट हो रहा है? फोर्स. फोर्स एक्सर्ट होने से ये बॉडी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट करके कहाँ चली जाती है? पोजीशन बी पे. पोजीशन ए और बी पे क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट का. दोनों के पोजीशन अलग है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ. फोर्स है, मतलब वर्क डन हो रहा है. व्हाट इज द वर्क डन इक्वल टू? The force, the amount of force and the amount of displacement will give you the work done. Unit of work, note it down, please note it down. The SI unit. What is the full form of SI, Tanvi? Standard International. Standard International Unit, SI unit बोलते हैं इसको, of work is Joule. Joule, named after a scientist. नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट. बहुत सारे यूनिट्स है जो साइंटिस्ट के नेम पे रखे जाते हैं. मैंने पहले भी बताया था, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल. ये दोनों साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए. वैसे ये थर्ड यूनिट है तुम्हारे सिलेबस में अब तक फिजिक्स में, जिसका नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जूल. हु वाज जूल? लेट मी शो यू हु वाज जूल.
See, every time you come across such, you can say, information, you should be inquisitive. Now, all of you at home are doing classes on your phone or your mobiles or your iPads or laptops or computers. तो जाओ गूगल में, और गूगल में जाके यहाँ पे ये सर्च टैब है, इस पर टाइप करो JOULE, जूल, तो तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, विकीपीडिया में जाना, बिकॉज वहां पे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है। बहुत सारे साइट्स होते हैं, लेकिन विकीपीडिया मैं मानता हूं काफी एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये जूल कहां से आया है, इसका क्या मीनिंग है, ये सब यहां पे लिखा है। और एक, इट इज नेम्ड आफ्टर इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल, 1818 टू 1819। इसके नाम के ऊपर रखा है। क्यों रखा गया है भाई, इसने क्या किया ऐसा? तो इसने सारी रिसर्च की है, वर्क डन के पीछे जो फॉर्मूला देने वाला इंडिविजुअल है, दैट इज दिस गाय। ठीक है, अब तुम इसके बारे में ही पढ़ सकते हो। So you can just click on his name and you will see a very scary photograph. So you can just invert. Yeah, he's not so scary, friendly guy, दादाजी. Okay. तो ये क्या करता था, कब उसने क्या मैकेनिकल काम किया, और उसने किसके साथ काम किया? देखो, लॉर्ड केल्विन के साथ काम किया। एंड केल्विन तुम जानते हो कौन है? केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द सेम गाय on the name of whom that Kelvin scale was created. Joule and Kelvin worked together, ठीक है, to develop an absolute thermodynamic temperature scale which came to be called Kelvin scale. मतलब उसमें जूल भी था साथ। ठीक है, and then उसके early years, and then there are many things about his life, and you know क्या क्या उसको awards मिले and everything, family, you can read, why not? क्यों हमेशा हम फेमस पीपल ऑन इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे फोकस करें? इन पे भी फोकस करना चाहिए, आफ्टर ऑल वी आर स्टडिंग अबाउट देम। ठीक है, सो जूल, नाउ वी नो व्हाट इज जूल, हु इज जूल। ये है SI यूनिट ऑफ वर्क। CGS यूनिट, CGS यूनिट, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज CGS? यू कांट टेल मी, सीधा स्ट्रेट अवे नो। CGS, CGS, कौशल? अच्छा, CGS is another unit, exactly, which is centimeter gram seconds unit. मतलब this is a smaller unit. जितने भी SI यूनिट्स है ना, उसके स्मॉलर वर्जन्स आर CGS यूनिट्स। जैसे SI यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, तो CGS में क्या होगा? सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन, तो CGS यूनिट क्या होगा? डाइन, 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 DYNE। हाँ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। ये जो डाइन है ना, वो CGS यूनिट है फोर्स का। वैसे ही SI यूनिट वर्क का है जूल, CGS यूनिट क्या है? अर्ग। क्या बोलते हैं इसको? अर्ग। डाइन एंड अर्ग आर नॉट नेम्ड आफ्टर एनीवन, they are not names of any scientist as far as I know. हो सकता है, सर्च करो तुम, तुम्हारी अगर क्यूरियोसिटी है, यू सर्च। ठीक है, इनका रिलेशन प्लीज नोट कर लो। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये फिल इन द ब्लैंक्स MCQs में आ सकता है ये क्वेश्चन। डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, definition of 1 joule: when force is 1 newton, displacement is 1 meter, then work done is said to be 1 joule. मैं तुम्हें बता दूं ये डेफिनेशन ऑफ 1 जूल आया कहां से। वर्क का फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। फोर्स का SI यूनिट क्या है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, अगर फोर्स SI यूनिट में कंसिडर किया है मैंने, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट कंसिडर किया है,
तो वर्क का कौन सा यूनिट कंसिडर करूंगा? एसआई यूनिट। और क्या है वो? जूल। तो इससे बनती है डेफिनेशन 1 जूल की। सो डेफिनेशन क्या है 1 जूल की? देखो, 1 joule of work is said to be done. 1 joule of work is said to be done when 1 Newton of force applied on any body displaces that body by 1 meter in its own direction. मैं यहां पे जो लिखी है डेफिनेशन वो पढ़ता हूं। अब मैंने अभी खुद की बना के डेफिनेशन बोली, अब यहां पे क्या डेफिनेशन लिखी है देखो। 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter in its own direction. Exactly the same. So 1 joule is equal to 1 Newton times 1 meter. यह है 1 जूल का मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग। सो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इज दिस करेक्ट प्रिथा? Exactly. Newton meter together multiplied makes a joule. Similarly, you might have noticed this, that 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. If you multiply kilogram, meter and per second square, you get 1 Newton. Similarly, 1 joule is 1 Newton meter. ये डेफिनेशन याद रखना है। किसकी डेफिनेशन है? 1 जूल की। 1 जूल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। कब होता है? जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी भी बॉडी को 1 मीटर के डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता है उसकी डायरेक्शन में, तब वर्क डन होता है 1 जूल। कुछ कंक्लूजन्स वो लोग ने ड्रॉ किए। पहला कंक्लूजन ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। कैसे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, वॉल को पुश कर रहा हूं मैं, वॉल को, वॉल हिल रहा है? नहीं। मतलब वॉल में डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो मैंने कितना वर्क डन किया? जीरो। मैं टायर्ड हो गया, मैं फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वर्क डन जीरो है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। ठीक है? व्हेन यू पुश अ वॉल विथ फोर्स एफ, यही एग्जांपल है, then displacement of the wall is zero, therefore work done by the force on the wall is zero. When you sit on a chair and prepare a lesson in 2 hours, you may feel tired, but according to physics, no work is done. If you hold a briefcase for 1 hour and do not move the briefcase, then displacement of the briefcase is zero and therefore work done by you on the briefcase is zero. तुम एक बैग पकड़ के खड़े हो, तुम टायर्ड हो जाओगे, लेकिन वर्क डन कितना किया तुमने? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्लियर हुआ वर्क डन का कंडीशंस? ये बहुत जरूरी है। ओके, नाउ let me show you a new aspect of work done which is little advanced. You all know that before I take admission I take interview. ठीक है? मैं पूछता हूँ, कुछ सवाल पूछता हूँ पहले, बाद में ही मैं एडमिशन देता हूँ। मैं 10th में आने वाले बच्चों को बहुत बार ये वाला सवाल पूछा है, यही सेम, that is force exerted on a body at an angle in the direction of displacement. और आधे से ज्यादा बच्चों को ये नॉलेज ही नहीं होता क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। किसी के पास एनसीईआरटी है? क्योंकि मैंने एनसीईआरटी कभी देखी ही नहीं। मुझे पता है मैं जो बुक फॉलो करता हूँ एनसीईआरटी से ज्यादा है, मतलब एनसीईआरटी में जो है वो तो है ही, इसमें कुछ ज्यादा भी है, और मुझे लगता है इतना मिनिमम पढ़ना चाहिए सबको। एनसीईआरटी में चेक कर, ये वाला है क्या? थीटा, थीट, हाँ हाँ, लेकिन ये केस है क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब वो एक एंगल पे होते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं है? हाँ हाँ हाँ, उसमें है, करेक्ट। तो जो एनसीईआरटी से लिमिटेड रखेगा अपना नॉलेज, वो ये चीज नहीं पढ़ पाएगा, और ये चीज नहीं पढ़ा तो वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तुमने सिर्फ 20% सीखा है। मेजर चीज यहां पे है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं।
एक बार ये सीख लोगे, आगे तुम्हें वर्क डन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एस चांद में है ये है फायदा रेफरेंस बुक का। एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हो तुम साथ में, सारे कंटेंट क्लियर है, लेकिन साथ में कुछ नई चीजें हैं वो समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो पे अटेंशन क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे और एक स्केच करूंगा, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। Suppose this is the ground level. And there is this toy car which is tied with a string, and this string is pulled by a boy. एक छोटा बच्चा ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है यहां पे पकड़ के। ये ग्राउंड है। तुमने भी किया होगा बचपन में ऐसा कुछ, नहीं किया होगा पता नहीं, देखा होगा या इमेजिन कर सकते हो अभी। जस्ट इमेजिन के फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, मतलब जिस हाथ में रस्सी है, ठीक है, वो रस्सी के डायरेक्शन में, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो जब फोर्स एक्सर्ट होगा, ये कार का मोशन डिस्क्राइब कर सकते हो तन्वी? ऑप्शन देता हूं मैं। ये कार जाएगी स्ट्रेट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देता हूं, ये कार उड़ने लगेगी। थर्ड ऑप्शन देता हूं, ये कार अपनी जगह से नहीं हिलेगी। फोर्थ ऑप्शन देता हूं, ये कार पीछे जाएगी। अगर देखा जाए तो अगर वो एक तो स्ट्रेट चल सकती है, मतलब सबसे पहला ऑप्शन। हाँ, और अगर रस्सी छोटी हो तो फिर वो हवा में भी उड़ सकती है, अगर जो उसको पकड़ रहा है वो बड़ा होगा हाइट में। ओके, तो क्लियर मैं बता देता हूँ, ये सारे आपके जो भी ऑप्शंस है, बच्चे की हाइट उतनी है जितना उसके रस्सी उसके हाथ में आ सके। बच्चा लंबा नहीं है, बच्चा छोटा है, यहाँ उसका हाथ है, बच्चा स्ट्रेट लाइन में चलने वाला है, बच्चा ऊपर उड़ने नहीं वाला है, बच्चा स्टेयर पे नहीं चढ़ रहा है, बच्चा सीधा सीधा चल रहा है, बच्चा छोटा है, बच्चे की हाइट छोटी है। और क्या है, और क्या होगा बताओ? सीधा जा रहा है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो, स्ट्रेट जाएगी कार? ठीक है, मतलब एक चीज यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्लियर हो चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक नहीं होता। हो सकता है, इस एग्जाम्पल से तो हमें समझ में आ रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में है, मतलब दोनों के बीच में एक एंगल है। ये एंगल को मैं नाम दे दूंगा थीटा। अब तुम बोलोगे थीटा क्या है? थीटा written as THETA, theta, okay, or theta. It's a Greek letter. It's a Greek letter, and this Greek is a language, you know. और वो लैंग्वेज में जो ABCD जो होती है उसमें एक लेटर आता है थीटा। ये एंगल का, ये जो सॉरी ये जो सिंबल है थीटा, उसका यूज जनरली एंगल्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, उस एंगल को दिखाने के लिए मैं यूज करता हूं थीटा। दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इस केस में हम वर्क डन कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि इस केस में सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो साथ में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 11th अगेन, जहां पे एक चैप्टर है वेक्टर्स। वेक्टर्स, उसमें तुम ये सीखोगे कि क्यों ये हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी के लिए मैं तुम्हें जो टेक्निक बता रहा हूं या फॉर्मूला दे रहा हूं, सिर्फ उसको लर्न करो। तो साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस थीटा। तुम बोलोगे सर ये कॉस क्या है? थीटा तो ठीक है, आपने बताया एंगल है, कॉस क्या है? व्हाट इज कॉस? सो कॉस इज अ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। कॉस क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तुम बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, जो तुम क्लास 10th में पढ़ने वाले हो, अगले साल ही आने वाला हो। नो मैटर तुम आगे आर्ट्स लेने वाले हो, कॉमर्स लेने वाले हो, साइंस लेने वाले हो, ट्रिग्नोमेट्री सबको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो 10th का सिलेबस।
सो ये ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, हम उसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, मैं टॉपिक के अंदर टॉपिक में जा रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट्स वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू. So let me tell you what is cos theta and what is a trigonometrical ratio. You know what is this? Yes, everybody knows. This is what? This is a right angle triangle. ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में तीन एंगल है जिसमें से एक राइट एंगल है. राइट एंगल को भूल जाओ, दूसरे दो एंगल का नेचर या टाइप क्या होगा? एक्यूट. एग्जैक्टली, ये दोनों एंगल एक्यूट है, मतलब 90 से छोटे हैं, कुछ भी हो 90 से छोटे हैं. इन दोनों में से किसी एक को मैं नाम देता हूं थीटा. तुम अगर देखोगे तो यहां भी थीटा कैसा है? एक्यूट ही है ना? तो उस हिसाब से यहां भी मैंने एक राइट एंगल बनाया और वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और उसमें जो एक्यूट एंगल था उसको क्या नाम दिया? थीटा. ठीक है, अब तुम्हें पता है ऐसा कोई थियरम या फॉर्मूला या रिलेशन जिससे ट्राइंगल की दो साइड पता है राइट एंगल की और तीसरी हम निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में? Pythagoras theorem. Everybody knows Pythagoras theorem. Square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. सबको पता है ये. But that's just one theorem which you have been studying till class 9th. In class 10th, we will teach you the technique to find the missing sides if only one side and one angle is given to you. Just imagine अगर तुम्हें सिर्फ एक साइड पता है और एक एंगल पता है, क्या तुम तीसरी साइड और दूसरी दो साइड जो मिसिंग है ढूंढ सकते हो? यस, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? और एक टूल है तुम्हारे हाथ में. एक टूल तो है ही पाइथागोरस थ्योरम अपने पास, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट? कि हमें दो साइड्स पता होनी चाहिए, तभी तीसरी ढूंढ सकते हैं. कोई भी हो, फिर वो हाइपोटेनियस हो, परपेंडिकुलर हो या बेस हो, एटलीस्ट दो साइड पता होनी चाहिए. यहां पे क्या है? एंगल और एक साइड पता है तो सब बाकी की चीजें हम लोग ढूंढ सकते हैं. तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनाए गए, साइंटिस्ट ने बनाए. एंड दिस गोज वेरी बैक, वे बैक, लाइक दिस इज अप्रोक्सीमेटली ट्रिग्नोमेट्री का जो बर्थ हुआ था, इट इज अराउंड 1500 years old, maybe before that, we don't know. बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये. पाइथागोरस भी पुराना है. पाइथागोरस was a Greek philosopher and a mathematician and a physicist and astronomer. Yes. ठीक है, वैसे ही कुछ दूसरे मैथमेटिशियंस ने ये ट्राइंगल के ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर और एक थियरी निकाली, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, इसमें वो लोग ने कुछ रेशियोज बनाए. साइन, बोर मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, जिसको प्यार से, मतलब शॉर्ट फॉर्म, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक भी बोलते हैं. कितने रेशियोज है टोटल? 6 रेशियोज. कितने? उसमें से हम कौन सा रेशियो यूज कर रहे हैं? कॉस, कोसाइन. किस फॉर्मूला में? वर्क के फॉर्मूला में. तो इसका मीनिंग क्या है? कॉस होता क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपना एक फॉर्मूला है. मैं फॉर्मूला भी बताता हूं, तो बहुत फनी है, बहुत मजा आएगा तुमको. फॉर्मूला तो और ज्यादा फनी है. क्यों? फॉर्मूला में फनी क्या होता है? बताता हूं. देखो, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है? और ये जो रेशियो है ना, इट इज बिटवीन एनी टू साइड्स. अगर 3 साइड्स है और उसमें से किसी दो साइड का मैं रेशियो बना रहा हूं, तो टोटल कितने रेशियोज पॉसिबल है पता है? 6 रेशियोज. सपोज ये साइड 1 है, ये साइड 2 है और ये साइड 3 है, तो 1 और 2 का रेशियो पॉसिबल है, 2 और 1 का भी पॉसिबल है. 2 रेशियो हो गए. 1 और 3 का पॉसिबल है, 3 और 1 का भी पॉसिबल है, 4 रेशियो हो गए.
2 और 3 का पॉसिबल है, 3 और 2 का भी पॉसिबल है, 6 रेशियो हो गए 6 रेशियो। यही तो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। मतलब ये ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो है, बट कौन सा क्या है, साइन का वैल्यू क्या है, कॉस क्या है, ये याद रखने के लिए तुम्हें मैं एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देता हूं, सोकाटोआ। तुम बोलोगे सर जापानीज में क्यों बात कर रहे हो सर, कोरियन वोरियन क्यों चालू कर दिया आपने। सो का टोआ, इसको बोलते हैं नेमोनिक। ये बोल रही है क्या ये, कौन सा क्लास चल रहा है इधर, सर आई वांट आउट, यू कैन। अरे टेंशन मत ले यार, बहुत इजी है। और अभी तो ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा तेरे को हमेशा के लिए याद रह जाएगा, रियली बोल रहा हूं। सोकाटोआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत इजी है। एस का मतलब होता है साइन, एस का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑपोजिट, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। हाँ, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का वैल्यू क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सी का मतलब होता है कॉस, कोसाइन मतलब कॉस, और वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब ये जो थीटा है ना, थीटा, थीटा के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, ए बी, ए बी ए बी ए बी, ऑपोजिट में कौन सी साइड है, ए बी। और एडजेसेंट में तुम बोलोगे सर, सॉरी मैं साइन की बात कर रहा हूं, तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एक ही होता है। ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में दिख रही है तुम्हें साइड ए सी, वो हाइपोटेनियस है। तो ओ अपॉन एच, ओ क्या है ए बी, एच क्या है ए सी। ए बी की लेंथ अगर तुम्हें पता है और थीटा की वैल्यू पता है, ठीक है, तो तुम ए सी की वैल्यू ढूंढ सकते हो। दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। विल गो टू द डिटेल्स, बट लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग। कॉस क्या बताया मैंने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के एडजेसेंट में कौन सी साइड है, कौशल। इसके एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट हमने क्वाड्रिलैटरल में भी पढ़ा है, एडजेसेंट क्या होता है। तेरे एडजेसेंट में कौन बैठा है अभी, पृथा, और तेरे ऑपोजिट में कौन बैठा है, तेरे सामने। हाँ, समझा। तो एडजेसेंट ऑपोजिट को समझ ले पहले। तो मेरे को बता, इसके एडजेसेंट में कौन है, बीसी है या एसी है, दोनों है। लेकिन एसी को एडजेसेंट नहीं बोलते, एसी का नाम क्या है, हाइपोटेनियस। एच फॉर, ए फॉर, ओ फॉर, हाँ, तो ये तीनों यूनिक है। तो एडजेसेंट कौन हुआ थीटा के, बी सी, और हाइपोटेनियस कौन हुआ, ए सी। सो कोसाइन कॉस थीटा मतलब बी सी अपॉन ए सी इन दिस ट्राइंगल। इन एवरी ट्राइंगल यू कैन अप्लाई दिस। तो मुझे बताओ फिर टैन, ये टी फॉर टैन हो गया, टैन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और टैन थीटा इस ट्राइंगल में अप्लाई करो, ऑपोजिट क्या है थीटा के, ए बी, और एडजेसेंट क्या है, बी सी, ए बी अपॉन बी सी। आया ना रेशियो साइड्स का। तो ऐसे अगर मैं, अच्छा तुम बोलोगे सर ये तो तीन ही रेशियो है, ये कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट किधर है। तो टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो कॉट क्या हुआ, कोटेंजेंट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सेक क्या हुआ, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और कोसेक क्या हुआ, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। ये है पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में पढ़ने वाला तुम, मतलब पूरा मैंने अभी बता दिया तुमको, जो अभी जरूरत ही नहीं है तुमको, सिर्फ कॉस। लेकिन ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कुछ फन पार्ट, ठीक है। तो कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये सोकाटोवा फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। पीबीपी एचएचबी, हाँ, जिसमें पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इज देयर अ परपेंडिकुलर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस। एंड बी का मतलब होता है बेस, एंड एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो इसमें फनी क्या है, सोकाटोवा ज्यादा फनी लग रहा था, इसमें फनी क्या है, पीबीपी एचएचबी है फनी। इसका एक नेमोनिक है, इसको याद करने का एक तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले।
हाँ क्या देखा था क्या तूने? PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और भी है नेमोनिक, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। और भी एक नेमोनिक है, लेकिन ये बताना मत किसी को, पापा को तो बिल्कुल मत बताना, तो चाटा मारेंगे। पापा बियर पिला दो, हाँ हाँ बेटा। Mnemonics. So that's how you remember the formulae for trigonometric ratios. This is what we are dealing with in physics in the small part of work. ठीक है? So समझ में आया trigonometry? If I ask you now, at least थोड़ा तो idea आया होगा. Okay. So what we are concerned with in physics? Which trigonometrical ratio? Cos or cosine, whatever, however you want to call it, cos or cosine. Cosine is the full name, cos is the short form. ठीक है? Okay, coming back to our formula. So this is cos theta. So what you do is you put cos of the angle between force and displacement over here, and that is a number. ये cos theta होता क्या है? It is nothing but a pure number that you multiply here with force and displacement. You get the exact work done. क्योंकि यहाँ work done force into displacement नहीं होगा. यहाँ work done will be something different because force and displacement are at an angle with each other. So what I'm going to give you is a very easy method to solve questions or numericals based on this formula, and you will use the values of cos theta which I will give you. ठीक है? तो प्लीज नोट डाउन, पहले तो ये इतना तो लिखना ही है तुम्हें, उसके नीचे पहले देख लो बाद में लिख लो। cos 0 मतलब अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है, एंगल 0 है का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में 0 है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? कोई एंगल नहीं है, मतलब एंगल 0 है, मतलब cos 0 है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? cos 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है cos 0 की वैल्यू? 1। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता है? ये सीक्रेट आपको बताया किसने? मैथ्स में पढ़ोगे तुम, पूरा टेबल है उसमें सारी वैल्यूज है, उसको लर्न करना है, सब 10th में पढ़ने वाला, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? सो cos 0 क्या होता है? 1। अच्छा, तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0, जो हम लिखते नहीं है। तुम देखा, तुमने नोटिस किया? F इंटू एस इज इंटू 1 हो जाएगा ये, विच विल बी F इंटू एस। मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था वर्क डन का? क्योंकि उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में था, तो मैं cos 0 या 1 मैंने लिखा ही नहीं, सिर्फ F इंटू एस लिख दिया। टेक्निकली भी करेक्ट है, cos थीटा डालोगे तो भी करेक्ट है, नहीं डालोगे तो भी करेक्ट है। मेक सेंस? अब देखो क्या होगा। अब मैं ये जो एंगल है ना, ये थोड़ा बढ़ा दूंगा, cos 30 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है? √3/2, √3 का हाफ। ठीक है? सो जब भी एंगल 30 होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? cos 30। और cos 30 का मीनिंग क्या है? √3/2। ठीक है? वैसे ही और एक एंगल अगर मैं थोड़ा और बढ़ा दिया, एंगल 45 डिग्री कर दिया, किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो एंगल कितना हो cos 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। कितना हो जाएगा? 1/√2। अच्छा, एंगल मैंने और बढ़ा दिया, मैंने कर दिया अब 60 डिग्री, तो cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2। यू हैव टू रिमेंबर दिस 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 एंड टू मोर। मैंने अगर एंगल दोनों के बीच में कर दिया 90, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और ये एग्जांपल मैं दूंगा तुम्हें अभी, और तुम्हें बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। cos 90 सरप्राइजिंगली होता है 0, मतलब F इंटू एस इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज, मतलब वर्क डन इज। कब वर्क डन 0 होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। आई विल गिव यू एग्जांपल्स।
ठीक है, एंड द लास्ट नंबर यू नीड टू रिमेंबर इज cos 180 डिग्री विच इज -1 -1। हाँ, लेकिन cos 180 -1 होता है। फोर्स इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है। ऐसा देखा है कभी? देखा है ना? साइकिल चलाते हो तुम, साइकिल चलाते हो, वेयर आर यू अप्लाइंग फोर्स? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट देयर इज वन मोर फोर्स ऑन द बाइसिकल, frictional force. Who is applying frictional force? The road. In which direction? Backward direction. Frictional force is continuously trying to slow down the cycle and stop it eventually. So frictional force is always exerted on the bicycle in backward direction, but you are pedaling in forward direction. So frictional force पीछे की तरफ है, साइकिल आगे की तरफ जा रही है। एंगल कितना हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज -1 टाइम्स एवरीथिंग, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क डन व्हेन यू आर राइडिंग बाइसिकल। यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि तुम जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो बाइसिकल को, बाइसिकल उधर ही जा रही है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जिस डायरेक्शन में बाइसिकल को लेके जाने की कोशिश कर रहा है, बाइसिकल वहां नहीं जा रही है, बाइसिकल उसके ऑपोजिट जा रही है। सर एक डाउट है। हाँ जी, पूछ। सर मतलब जो वर्क डन कर रहा है और ऑब्जेक्ट में मतलब जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो सर कांटेक्ट फोर्सेस होना चाहिए? जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है। किसी किसी केसेस में नॉन कांटेक्ट फोर्स भी वर्क डन कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर दैट मैटर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। बॉल को तुम ऊपर ऊपर फेंको, बॉल नीचे आता है, तो जब बॉल नीचे आता है तो अर्थ इज डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉल, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग द बॉल डाउन एंड बॉल इज कमिंग डाउन, सो दैट मीन्स positive work is done by the earth on the ball, non contact force, right? यस सर। yes, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, यहां पे भी कुछ क्वेश्चन है। yes, f into s into cos 0. cos 0 is 1. I told you over here. cos 0 की वैल्यू क्या है? 1. कैसे आई ये वैल्यू बताऊंगा मैं, 10th में बताऊंगा, ठीक है। बट cos 0 होता कितना है? 1. cos ऑफ 0 है, सिर्फ 0 नहीं है, ये याद रखो। cos क्या है? दैट पर्टिकुलर रेशियो, एंड दैट रेशियोज वैल्यू इज 1. You understand? When theta is 0, cos of 0 becomes 1, and anything into 1 is the same thing. So you don't multiply 0, you multiply cos 0. So what is cos 0? 1. And cos 90 क्या होता है? हाँ, तब 0 हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब है ये केस। आई विल एक्सप्लेन विथ फिजिकल एग्जाम्पल, मीन्स रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। एनी मोर क्वेश्चंस? प्लीज आस्क मी। कुछ चीजें अभी भी शायद क्लियर नहीं हो, 100% क्रिस्टल क्लियर अभी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये अभी हम लोग बीच में, वी आर इन मिडल ऑफ एवरीथिंग, विल क्लियर इट, नो प्रॉब्लम। बट अभी तक कुछ सवाल है जो नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। मैंने शुरुआत की थी ये फिगर से, जहां पे मैंने बोला था कि एक स्ट्रिंग से ये कार को बांधा हुआ है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, जिससे ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हुआ है, दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। और सारी स्टोरी यहीं से शुरू हो गई कि कॉस क्या है, थीटा क्या है, कॉस थीटा होता क्या है, उसकी वैल्यूज क्या होती है, तो मैंने तुम्हें ये बताया था। तो प्लीज अब भी नोट कर लो, ये पूरा ये डायग्राम बनाओ, ये फॉर्मूला लिखो, W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज लिख लो। ऐसे लोगों को ना मैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल छोड़ता नहीं हूं। तुम मेरे टारगेट हो, टारगेट। गलत जगह आ गए। एक मुझे बात बताने दी तुम लोगों को। तुम लोग फिजिकल क्लास में आ रहे हो, किसी ने एक कुछ लिखा नहीं, तुम लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा?
ग्रुप में? आज के बाद तो बिल्कुल लिखोगे तुम, क्योंकि आज मुझे लग रहा है फिजिक्स पढ़ के तुमको मजा आ रहा है, पहली बार अच्छा लग रहा है, फिजिक्स इंटरेस्टिंग लग रहा है. प्लीज राइट इट इन द ग्रुप. ये है इंटरेस्ट. मैथ्स तो एब्स्ट्रैक्ट है यार, डेड नंबर्स को पढ़ना है मैथ्स. फिजिक्स इज लाइक गिविंग अ कॉन्सेप्ट टू इट, सो दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग. ठीक है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी चलो रुकता हूं तुम्हारे लिए. तुम्हें वो भी लिखना है क्या, सोकाटोआ? यू वांट टू राइट इट? We are going to study next year, no, so don't worry about it. Just write the values, because for numericals 1, 2, 3, 4, 5, 6 values, they are must. You must know them. तुम्हारे स्कूल में हो गया ये पढ़ा के इतना पार्ट? ये पढ़ा है ये वाला बताया था? अच्छा, अच्छी बात है. अच्छा, हाँ, इसके बाद एनर्जी. अच्छा, एनर्जी नहीं. Done? Shall I? Okay, cool. So let me give you an idea about what is happening when, as and when you are increasing the angle between force and displacement. So case 1 is where theta is 0 degree. थीटा 0 डिग्री. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में है, और इस केस में वर्क डन कितना होता है? F इंटू एस इंटू कॉस 0, विच इज F इंटू एस इंटू 1, विच इज F इंटू एस. और इधर तुम्हें लिखना है मैक्सिमम. इसका मतलब क्या है? वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 0 होता है. थीटा 0 मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में होते हैं. ऐसे एग्जांपल क्या है? अ बॉय पुशिंग अ बॉक्स ऑन द ग्राउंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई बॉक्स को पुश कर रहा है तो फोर्स जिस डायरेक्शन में, बॉक्स भी उसी डायरेक्शन में जाएगा अगर मूव होगा तो. और अगर वो मूव होगा तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विच इज F इंटू एस इंटू कॉस 1, सॉरी कॉस 0, विच इज 1, विच इज मैक्सिमम. मतलब मैक्सिमम वर्क डन इस केस में होगा. केस 2 is when theta is 30 डिग्री. इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में? 30. सो वर्क डन कितना हो जाएगा? F इंटू एस इंटू कॉस 30. दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू एस टाइम्स √3/2. That is W is equal to Fs √3 the whole upon 2. This work done is little less than case 1. मतलब वर्क डन क्या हुआ केस 2 में? डिक्रीज हुआ. मतलब जैसे ही मैंने एंगल बढ़ा दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, वर्क डन कम हो गया. केस 3 में थीटा कितना हो जाएगा?
45 डिग्री। अब वर्क डन और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 45 है, सो वर्क डन विल बी F इंटू एस इंटू कॉस 45, दैट इज F इंटू एस इंटू 1/√2, दैट इज Fs बाय √2। अब ये जो वर्क डन है ये थोड़ा और कम हो गया। मैं जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा हूं वर्क डन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। रिमेंबर दैट। केस 4 में क्या हो रहा है, केस 4 में थीटा इज 60 डिग्री। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब है वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 60, विच इज F इंटू एस इंटू 1/2, which is F into S by 2, which is half the amount of work done in case 1. मतलब अगर तुम्हें किसी टॉय कार को पुल करना है कम वर्क के साथ, तो तुम एंगल को बढ़ा देना। ये जो बच्चा कर रहा है ना, पुल करने का जो स्ट्रिंग लगा के, वो सब सही काम कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि उससे उसको कम एफर्ट लग रहा है। वो वॉक करते करते आराम से एक हैवी टॉय कार को खींच सकता है। जस्ट इमेजिन वो वुडन हैवी टॉय कार है, उसको खींचना है, तो वो उसको पुश करेगा या पुल करेगा अलोंग द ग्राउंड। उससे कम वर्क डन होगा या कम एफर्ट लगेगा जब उसको स्ट्रिंग के साथ खींच के आगे ले जाएगा एट एन एंगल, और वो एंगल जितना बड़ा उतना वर्क डन कम कम होगा, उतना वर्क डन। समझ में आया? और लास्ट केस, सेकेंड लास्ट केस, केस 5। केस 5 में थीटा कितना हो जाता है, एंड दिस इज वेयर वी हैव टू टॉक अ लॉट। इसका ये मतलब है, घटिया लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाता मैं एक। धिक्कार है मेरे पे। ठीक है, कोई बात नहीं। 90 डिग्री यहां पे है फोर्स और यहां पे है डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा कभी तुमने कुछ देखा है? देखा है, फील किया है, किया भी है, सबने किया है। बताता हूं। सपोज यू आर होल्डिंग अ बैग इन योर हैंड, ठीक है, एंड यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। दिस इज द केस। I'll tell you why. See, you are holding a bag in your hand. That means you are exerting force on that bag in upward direction. Suppose this is the bag. ठीक है, तुम बैग पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहे हो? अपवर्ड, ऐसे पकड़ा है तुमने, ठीक है, और तुम चल रहे हो स्ट्रेट रोड पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। तो वर्क डन बाय यू ऑन द बैग इज 0। मैं इस पे डिबेट करूंगा, थोड़ा रुक जाओ। तो फॉर्मूला है इसका F इंटू एस इंटू कॉस 90, विच इज F इंटू एस इंटू 0। कॉस 90 0 होता है, डू यू रिमेंबर दैट? मैंने बताया था। तो एवरीथिंग बिकम 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अब क्या है ये, व्हाट इज दिस थिंग? व्हेन एनीवन इज होल्डिंग अ वेट इन देयर हैंड्स and walking on a straight road, what they are doing, they are doing work against gravity in holding that object, क्योंकि ग्रेविटी कंटिन्यूअसली वो बैग को नीचे पुल कर रहा है, लेकिन तुमने उसको पकड़ा हुआ है। बट आर यू गोइंग अप? नो, यू आर गोइंग स्ट्रेट। सो फोर्स इज वर्टिकल, displacement is horizontal, and we know the angle between vertical and horizontal is 90, and that's why work done by us against gravity on that body, on that bag is 0। हम अगेंस्ट ग्रेविटी कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अगर सेम वेट को लेके ब्रिज पे चढ़ते हैं, स्टेयर पे चढ़ते हैं, तब वी आर डूइंग वर्क। व्हाई? बिकॉज वी आर लिफ्टिंग दैट बॉडी अप। लिफ्टिंग इज डूइंग वर्क, स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू इट। बट इफ वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यू आर नॉट स्टोरिंग एनीथिंग। बैग पहले जिस हाइट पे था, थोड़ी देर बाद उसी हाइट पे रहेगा। वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क। Are you getting it? So this is one of the example where no work is done. Second example, I'll give you second example. You tell me.
A waiter in a restaurant is having a tray in his hand like this, and on that tray there are a lot of things, glasses, this, that, and he's walking across the hall of the restaurant. Is he doing any work on the tray against gravity? How much work is he doing on the tray against gravity? Zero. Why? Because he is holding the tray, he is not lifting it, he is holding it, and he is exerting force just to prevent it being falling down. So just supporting it. Okay, and he's walking in horizontal direction. Now this support is in vertical direction, the displacement of waiter is in horizontal direction, the angle made between them is 90, so work done is 0. जहां भी एंगल 90 हुआ वर्क डन क्या हो जाएगा, बस इतना याद रखो. और एक एग्जांपल देता हूं which is little bit different. Movement of a planet around sun. तुम सोचोगे ये कहां से आया, planet, gravitation. So suppose this is sun and there is a planet around it. ठीक है, which is moving in a circular path. ठीक है, एक चीज नोट करो, तुम्हें ग्रेविटी तो पता ही है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है. What is the direction of gravitational force on this planet by the sun? Towards it. मतलब ये सन अपने सेंटर की तरफ इस प्लैनेट को पुल कर रहा है. What is this force? This is the force due to gravity. कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को पुल करती है एक दूसरे की तरफ, towards each other. ठीक है, so this sun is pulling this earth towards itself. That is which force? That is the force due to gravity, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं if you have studied gravitation or saw the video. Okay, अब ये प्लैनेट क्या अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है. ये कहां जा रहा है, ये वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसके अराउंड. सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस प्लैनेट इज हियर. This is the direction of the displacement. Now, if you see what is this direction, if you ask me, I will say it is a tangent. The planet is moving in the tangential direction to the direction of force. This is known as centripetal force. ये हमने पढ़ा था मोशन में. Centripetal, the force exerted by sun on any body, by earth on moon. Centripetal force. And this is the direction of motion of the planet around the sun. ये S जो दिख रहा है ना, which is tangential direction. तो ये जो एंगल बनता है ना दोनों के बीच में, ये कितना होता है? So work done by the sun on the planet is equal to F into S into cos 90. It does not matter what is F, what is S. Cos 90 is how much? So work done becomes. So work done by the sun on any planet to move it around it in a circular orbit is 0. So if I ask you, what is the work done by moon in moving around the earth? What is the work done by earth on moon in moving it around itself? 0. कोई भी प्लैनेट सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है ना किसी दूसरे सन या प्लैनेट के अराउंड, तो वो वर्क डन नहीं करता है, 0 वर्क डन करता है. 3 एग्जाम्पल बताया, याद रहा. ब्रीफ केस वाला, वेटर वाला और प्लैनेट वाला. चौथा एग्जाम्पल, कूली. अ कूली is standing on a railway platform with a baggage or load on his head and standing waiting for the train. What is the work done by the coolie against gravity? 0. Why? Because there is no displacement. Now the train arrives and the coolie starts running with the train on the horizontal platform. What is the work done by the coolie against gravity? 0, because still he is मूविंग हॉरिजॉन्टल. उसने वो बैक को सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट
वर्टिकल डायरेक्शन में, मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल 90, मतलब वर्क डन 0. नाउ दिस कूली realizes that the train is not coming on that platform, is coming on another platform, so he is climbing a bridge. Will he now do any work against gravity? Yes, because now he is going upward, that is against gravity. So now he will do some work. Now no more the angle is 90. So can you identify real life examples where work done is 0 and not 0? Of course you can. So we have studied all the example but one. That's the last thing. I'm going to end it here. That is case number 6. Yes. Case 6 is where theta is 180 degree. That means force is over here, displacement is over here, and the angle between them is how much? What will be the work done? F into S into cos 180, that is F into S into minus 1, which is minus of F into S. Negative work done. Work done can be negative. Examples: work done by frictional force. Work done by frictional force on a moving body. On a moving body. अगर बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, साइकिल, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड. सो हाउ मच वर्क इज द फ्रिक्शनल फोर्स डूइंग? वी डोंट नो हाउ मच, बट द नेचर ऑफ दैट वर्क इज नेगेटिव, बिकॉज फ्रिक्शन पीछे जा रहा है, बॉडी आगे जा रही है, दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव. सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी 0 डिपेंडिंग अपॉन थीटा. थीटा इज व्हाट इट गवर्न्स वर्क डन और उसका नेचर. कंप्लीट वर्क, कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सब बता दिया. समझ में आया? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है, मैं इतना डिटेल में जा नहीं रहा हूँ. कॉस थीटा है, सब पढ़ लिया. ये देखो वैल्यूज दे रहे हैं हमको, पता है सब. कूली देखो, सेंट्रीपेटल, अर्थ अराउंड सन, सब जो बताया वही सब बता रहे हो. ये देखो नेगेटिव वर्क डन. ठीक है, यू कैन डू इट लेटर, नो प्रॉब्लम. तो वर्क जिसको भी आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है यहाँ पे. इसका जो एक्सरसाइज है मैं भेज दूंगा, तुम ट्राई करो. उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं. एंड इन नेक्स्ट क्लास एनीथिंग अर्जेंट before circles, if anyone wants me to do, I can do it. You tell me upon your request, as per your exams. Any revision, anything online, guys, girls? I will just stop the recording for the moment.